This is our fourth video on chemical reaction and equations of science for class 10th. In last three videos, we have studied about the chemical equations and reactions, how to balance the chemical equations, then types of chemical equation. In last video, we have studied about 5 types. Now, today we are going to read about the 6th type of chemical reaction. The sixth one is oxidation and reduction reaction. In oxidation reaction, electron lose oxygen. It is a process in which a substance loses electrons. ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं सबस्टांस में से. In which oxygen is added, hydrogen is removed from the substance. Let us take an example to understand how oxidation and reduction takes place. Look at this example for oxidation. Here copper reacts with oxygen and gives rise copper oxide. The oxygen from this added with copper. When oxygen is added, that reaction is known as oxidation reaction. And the next one is the reduction reaction. In reduction reaction, hydrogen is removed and oxygen is added, reverse of the oxidation reaction. In reduction, it is a process in which a substance gains electrons. इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है. एग्जाम्पल देखिए, पोटाशियम क्लोरेट लिया है, के पोटाशियम Cl क्लोरीन O38 क्लोरेट बन गया. पोटाशियम क्लोरेट को जब हमने हीट दिया तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई. डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह ही है रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन है. अदरवाइज ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह ही है. इसमें पोटाशियम क्लोराइड मिला और हमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अलग हो गया, तो ये होगी रिडक्शन रिएक्शन. If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. ठीक है, जब ऑक्सीजन गेन होता है तो रिएक्शन ऑक्सीडाइज होता है, और जब ऑक्सीजन लूज होता है तो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होता है. अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो तो उस तरह की रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन. Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. एक साथ ही दोनों रिएक्शन परफॉर्म होती हैं, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. Look at the example. Copper oxide plus water gives rise copper oxide plus hydrogen gives rise copper plus water. In reactant, oxygen with copper loses and gives copper. It is reduction. And here hydrogen combined with oxygen. This is a oxidation. Where oxygen is added, this is oxidation reaction, and where oxygen lose, that is reduction. Both the reaction simultaneously takes place in one reaction. This reaction is known as redox reaction. Next is exothermic and endothermic reaction. Exo means exit. In exothermic reaction, heat loses. The reaction which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction. Exothermic reaction वो होती है जब reaction perform होती है और जो जिसमें heat release होती है, वो होगी हमारी exothermic reaction. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं और सब सांस छोड़ते हैं, उसके साथ एक हीट निकलती है, तो वो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है हमारे बॉडी के अंदर, रिस्पायरेशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब हम वेजिटेबल वेस्ट को हम कंपोज करते हैं तो उस समय उसमें से जो गैस निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है, वो भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, the reaction which occur by the absorption of heat energy either in the form of light or electricity are called endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एक रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, जब रिएक्शन परफॉर्म होती है उस समय वो हीट ऑब्जर्व करके रिएक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट को की प्रेजेंस में, सनलाइट को यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उस तरह की रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। रिएक्शन परफॉर्म करते दौरान जो हीट यूज करते हैं वो एंडोथर्मिक, और जो रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद हीट रिलीज करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है करोजन। करोजन क्या है, जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और उनकी जो आउटर कोटिंग होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, उसमें आयरन की जो शाइनीनेस है वो खत्म हो जाता है, वो करोजन हो जाता है। ठीक है, द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन। जो हमारे वातावरण में केमिकल्स पड़े हैं या हवा पानी के ड्रॉपलेट्स में जो मॉइस्चर है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में रिएक्ट करेगा मेटल को साथ तो ऑक्साइड्स बना देगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेटल की जो आउटर सरफेस है उसको नष्ट करता चलेगा। उस प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन पार्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब हम आयरन का आयरन के कोई भी मेटल नया मेटल होता है उसमें शाइन होती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसपे एक परत सी बन जाती है, रेडिश ब्राउन पाउडर की तरह होता है, मतलब वो झड़ने लगता है। कुछ समय के बाद वो खराब होने लगता है मेटल, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, उसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ करोजन। आपने चांदी पर देखा होगा काले रंग की कोटिंग होती है, तांबे पे हरे रंग की कोटिंग, ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है और इन मेटल्स के कांटेक्ट में आता है और इसमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, ऑक्साइड्स बना देता है, तो कलर्स इनके चेंज हो जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रोसेस से काफी वेस्टेज होती है मेटल्स की। तो हमें कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स अपनाने होंगे कि जिससे ये वेस्टेज ना हो। हमारी कंट्री में टनों के हिसाब से हर साल आयरन वेस्ट होता है ऑक्सीडेशन इस करोजन की वजह से। तो कुछ मेथड्स हमें अपनाने होंगे, जैसे हम लोगों को पेंट कर देना चाहिए मेटल को, जिसकी वजह से कोटिंग बनी रहे, ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे डायरेक्ट मेटल के साथ और इसमें ऑक्सीडेशन ना हो, कोरोजन ना लगे। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो प्रोसेस है सिमिलर टू कोरोजन है, लेकिन रेंसिडिटी में क्या है, ऑयल और फैट के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है और कोरोजन में मेटल के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ठीक है, रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑयल और फैट के साथ, लेकिन एक स्लो प्रोसेस है, present in the food materials resulting in the change of smell and taste in them। जो खाना बना हुआ खाना होता है, जो तेल में बना हुआ खाना होता है, किसी भी तरह का फैट में बना हुआ खाना होता है, कुछ समय के बाद में उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, वो हो गया रेंसिडिटी। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू होगी है खाने में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए जिससे खाना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। खाने में क्या जो ऑयल है, ऑयल की वजह से ऑक्सीडेशन होती है, तो हमें खाने को प्रिवेंट करना है, एयर टाइट कंटेनर में डालना है। और जो मार्केट में फूड आइटम्स आती हैं, प्रिजर्व आइटम्स आती हैं, और जो आपके चिप्स आते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह खाते हो जो आप, वो
पैकेट में पैकिंग होके आता है, उसमें जो वो एयर भरी होती है वो एयर नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस उस ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए होती है ताकि उसमें रेंसिडिटी ना हो। उसमें क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं, बीएचए बुटाइलिक हाइड्रोक्सी एनिसोल, और बीएचटी बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि हमारा खाना प्रिजर्व रहे, हमारा खाना सुरक्षित रहे, हमारा खाना रेंसिडाइड ना हो। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।